Hey guys, welcome to another video on my channel. I do not like CP. So today's video is a bit different. Today we're going to talk about a topic and then we're going to use it to solve a complex problem, right? So today's topic is complex binary search. Okay. तो चलो देखते हैं कि व्हाट इज दिस बाइनरी सर्च, राइट? क्या होता है बाइनरी सर्च? जिनको अभी बिल्कुल आइडिया नहीं है, आई जस्ट गिव अ ब्रीफ इंट्रो एंड देन विल जंप राइट इनटू इट. तो अगर आप सोचो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइनरी सर्च, राइट? बाइनरी मीन्स टू और समथिंग रिलेटेड टू टू, right? And search means searching, so searching in twos, right? That's basically it. So it's a type of what do you say, divide and conquer algorithm, right? जहाँ पे you keep dividing your search space, जहाँ पे आप सर्च कर रहे हो उस टोटल डोमेन को आप हाफ करते जाते हो, डिवाइड बाई टू, until you reach your solution, right? So this kind of gives you a runtime complexity of log of n, which is very very fast. So it's mostly used for searching, right? The basic use case is searching for an element in a sorted array. So the requirement is that array has to be sorted, right? Chalo, let's see how this actually works by taking a simple example of an array. Right? So let's take an array like this: 3, 5, 9, 11, 15, right? And let's see, we have to search an element. For example, let's search for 11, right? So we have to search for 11 in this array. Okay, so how does the binary search work, right? So we have to first define our search scope, right? So what is a search scope? It has to be a part of this array, right? And within this array itself, it has to be between the position 0 and 1, 2, 3, 4, right? Fourth position, right? So this is our search space, right? So let's start by defining our start of the search space. So start is equal to 0 and end is equal to 4, right? Now, how does this, let's see, how does this work? So in a simple binary search, we divide it, we define the scope, right? And then हम इसका मिड पॉइंट निकालते हैं, the middle part of it, right? And हम उसे चेक करते हैं कि वो हाँ वो हमारे टारगेट वैल्यू के बराबर है या नहीं, राइट? इफ इट्स इक्वल टू आवर वैल्यू इज 11, अगर वो है, दैट्स आवर आंसर, राइट? इट मीन्स वी आर रिटर्निंग ट्रू, दिस वैल्यू इज प्रेजेंट इन द अरे. अगर वो नहीं है, देन वी शॉर्टन आवर सर्च स्पेस. ठीक है, शॉर्टन कैसे करते हैं? वी सी विद दैट मिड वैल्यू इज ग्रेटर देन और स्मॉलर देन आवर टारगेट वैल्यू. अगर वो ग्रेटर देन है, इट मीन्स कि उसके आगे वाले सारे एलिमेंट्स पे सर्च करने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर बिगर देन दैट. तो हमारा सर्च स्पेस लेफ्ट हाफ में शिफ्ट हो गया. सिमिलरली, अगर इट्स if the middle element is smaller than a target value, then हमारा सर्च स्पेस राइट हाफ पे शिफ्ट हो गया, बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स जो लेफ्ट ऑफ द मिड आर स्मॉलर, राइट? तो उनमें सर्च करने का कोई पॉइंट नहीं है, राइट? लेट्स सी कि कैसे वर्क करता है. So we define with, start with the while loop. While start is less than equal to end, right? क्योंकि हम यही हमारी बाउंड्री, इन्हीं के साथ हम खेलेंगे, राइट? नाउ वाई स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड? क्योंकि the value, these both are inclusive boundaries, right? So my value could be at 0th position, it could be at 4th position, right? So that's why I'm using less than equal to. Okay, now let's calculate the mid. So mid is equal to start plus end minus start by 2. ओके, इसके वैल्यू यहाँ पे होगी 0 प्लस 4 माइनस 0 बाई 2, राइट? विच इज इक्वल टू 2. तो हमारा मिड आ गया है 2. ओके, अब नाउ विल गोना आस्क कि आपने ऐसा क्यों किया? व्हाई इज दिस वे? व्हाई कांट वी जस्ट डू स्टार्ट प्लस एंड, सॉरी, दिस इज आवर स्टार्ट स्टार्ट प्लस एंड बाई 2. ये भी कर सकते हैं, राइट? दिस कैन आल्सो गिव यू द मिड पॉइंट, बट this is done, we avoid this kind of approach to avoid overflow errors, right? So अगर हम sum करेंगे directly start, so it may be start plus end could overflow the integer boundaries, right? So it's better to subtract and then just add to the start of it. That's one of the reasons, that is one of the things that you need to take care about when you are solving binary search problems. Okay, so अब हमें mid मिल गया, right, which is 2.
लेट्स सी कि अब मिड क्या है, राइट। सो अब हम चेक करते हैं कि मिड, फॉर एग्जांपल अरे मिड क्या है, राइट। क्या वो हमारे टारगेट के बराबर है, विच इज़ 11, राइट। अगर वो है, राइट, अगर वो है तो दैट्स ट्रू, रिटर्न ट्रू, राइट, मतलब हमें वैल्यू मिल गई, राइट। so here 2 is 0 1 2, so this is 2, right। क्या वो 11 के बराबर है, नहीं है, राइट। बट वो क्या है, क्या वो लेस देन है या क्या ग्रेटर देन, इट इज लेस देन, राइट। so it is 9 is less than 11, right। so अगर हम कोई भी एलिमेंट कंसिडर करें इसके लेफ्ट हाफ में, so all of them will be lesser than 11, क्यों, because it's a sorted array, right। and मैंने शुरू में बताया था कि बाइनरी सर्च always works on a sorted array, right। so this has to be sorted, so anything before 9 is also smaller, तो इसमें सर्च करने का कोई पॉइंट ही नहीं है, हमें सर्च करना है किसमें, राइट हाफ में, राइट। तो अब ये देखते हैं, तो अगर ये इक्वल है तो सही है, ठीक है। इफ आर मिड इज लेस देन 11, राइट। अगर लेस देन, अगर लेस मतलब जो हमारा केस है अभी कि 9 पे है एंड वो लेस देन है, तो इसका मतलब हमें लेफ्ट में सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब 9 तक हमें सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, हमें 9 से आगे सर्च करना है, राइट। तो माई स्टार्ट नाउ बिकम्स मिड प्लस 1, राइट। एल्स, एल्स में क्या आ जाएगा कि वो आर मिड इज ग्रेटर देन 11, राइट। अगर वो ग्रेटर देन 11 है, इसका मतलब कि उसके आगे सर्च करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसके आगे सारे एलिमेंट से बड़े होंगे, 13 14 15 जो भी होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल मिड में मेरे 13 होते वैल्यू, 13 के आगे 14 15 20 कुछ होता, तो उसमें सर्च करने का मतलब नहीं है, तो हमें लेफ्ट जाना होता। तो हम अपना अपर बाउंड को सेट कर देते, एंड को सेट कर देते मिड -1, राइट। अब ये होता और ये वाइल लूप यहाँ पे बंद हो जाता, ओके। तो अब इससे हमें ये पता चला कि हम कैसे डिवाइड करते हैं स्पेस को, ओके। कि अगर मेरा एलिमेंट जो भी मेरा मिड पॉइंट है अगर वो छोटा है, राइट, तो छोटा है तो उसको लेफ्ट वाले को डिस्कार्ड कर दो, बस राइट वाले में देखो, राइट। अगर मैं यहाँ पे आता, अगर ये होता तो हम इसको डिस्कार्ड, दिस इज ग्रेटर देन 15, राइट, इसके आगे कुछ भी अगर होता तो हम उसे इसे और इसके आगे वाले सारे को डिस्कार्ड कर सकते हैं, दैट्स व्हाई वी सेट एंड इक्वल टू मिड -1, ठीक है। मिड को कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो ऑलरेडी ग्रेटर देन है। सिमिलरली अगर लेस देन वाला केस होता तो मिड को कंसिडर नहीं कर रहे हैं बिकॉज इट इज लेस देन 11, सो मिड +1, okay। this way eventually you will find the, you'll come to this value, and this will be your answer, right। now there are certain things that you need to take care in binary search, right। छोटे छोटे conditions से it you may yeah, end into a result into a infinite loop, या तुम्हें value reach करने से पहले ही हमारा loop end हो जाएगा, right। so there are certain things that you need to take care of, but before we jump into that let's define our initial problem which is complex binary search। ये तो simple binary search था, right। so अगर हम देखें, like the usual understanding is कि बाइनरी सर्च एक अरेज पे काम होता है जो कि सॉर्टेड अरे हो, राइट। तो व्हाट इज एन अरे, अगर आप एक अरे को देखें तो इट्स जस्ट वे टू लिंक इंडेक्स एंड वैल्यूज, राइट। सो अगर मैं इसको एक फंक्शन की तरह ट्रीट करूँ, so this would be like a function which takes in an index and returns the value at that index, right। तो अगर हम इस तरीके से सोचें, right, कि it's a function, right, so then we can modify this or we can use this binary search in a situation where हमारे पास array नहीं है but we have a function, right, which takes an input and it returns an output, okay। now ये क्या किसी फंक्शन पे चल जाएगा, नहीं, it has to be a specific function, right। let's see कि क्या वो फंक्शन है। तो अगर मैं इसी को देखूँ, मैं इसी अरे को अगर मैं लेके चलता हूँ 3 5 9 11 एंड 15, राइट। तो अगर हम ये अरे लेते हैं एंड लेट्स डिफाइन अ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू false if array at x is less than 11, right, and true if array at x is greater than equal to 11, right। अगर हम ऐसा फंक्शन लेके मान के चलें, राइट, तो इसकी वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंगली क्या होगी, यहाँ पे ट्रू, सॉरी यहाँ पे फॉल्स, राइट, लेस देन बिकॉज वी आर टेकिंग लेस देन 11 है तो फॉल्स है, फॉल्स फॉल्स ट्रू एंड ट्रू।
So we can reduce this function now, or this problem now, to find the first element for which this function returns true, right? तो हमें वो फर्स्ट एलिमेंट चाहिए जिसके लिए फंक्शन ट्रू रिटर्न करता है, राइट? तो सिमिलरली अगर हम इसी तरीके से इस प्रीवियस फंक्शन को देखें, जो हमने प्रीवियस कोड को देखें जो हमने लिखा है, तो अगर बस अरे की जगह हमें चेंज करना है, लेट्स चेंज दिस, दिस एंड दिस, राइट? तो अगर मैं देखूं, इफ f of mid, right? But if f of mid, एक्चुअली हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है, राइट? सो नाउ लेट्स सी, if f of x, राइट, अगर वो फॉल्स है, राइट, इक्वल टू फॉल्स। फॉल्स मतलब कि वो लेस देन है 11, मतलब ये वाला पार्ट, राइट? अगर वो लेस देन फॉल्स, लेस देन सॉरी इक्वल टू फॉल्स है, इसका मतलब वो लेफ्ट साइड पे करता है, तो हमें उसमें सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट? तो हमारा जो दिस इज नॉट एक्स, दिस इज सॉरी आई हैव टू मॉडिफाई इट टू एफ मिड, राइट? तो अब हमें मतलब हम फॉल्स पे हैं, इसका मतलब वो खुद वैल्यू फॉल्स है, तो हमारा आंसर राइट साइड पे ही होगा, राइट? तो हम करेंगे मिड प्लस वन, राइट? एल्स अगर वो ट्रू है, राइट? तो ट्रू कहाँ कहाँ हो सकता है, लेट्स सी। ट्रू यहाँ पे भी हो सकता है, ट्रू यहाँ पे भी हो सकता है, बट डजंट गिव अस द फाइनल आंसर कि वो 11 में है कि नहीं है, राइट? तो व्हाट विल डू मिड एंड इज इक्वल टू मिड, राइट? बिकॉज अगर जो हमारा मिड है वो यहाँ पे भी आ सकता है तभी ट्रू देगा, और यहाँ पे भी आ सकता है तभी ट्रू देगा, राइट? तो अगर यहाँ पे आया तब तो आंसर है हमारे पास, राइट? तो हम इसको इग्नोर, मिड को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर ये यहाँ पे आता है तो हमें मतलब मिड से पहले वाले को देखना है, राइट? हो सकता है कि दिस इज नॉट द फर्स्ट एलिमेंट जिसके लिए ट्रू आया, राइट? इट कुड बी द फर्स्ट एलिमेंट, इट मे नॉट बी द फर्स्ट एलिमेंट, राइट? तो इसीलिए हमने एंड को मिड रखा कि अगर वो फर्स्ट एलिमेंट इसके लिए एफ के लिए ट्रू है तो वो भी उस बाउंड्री में आ जाएगा, अगर वो फर्स्ट एलिमेंट नहीं है तो ऐसे भी हम उसके लेफ्ट में सर्च करेंगे, राइट? तो ऐसे करते करते हम पहुंच जाएंगे, एंड हमारा जो आउटपुट रहेगा, और व्हाट विल बी आउटपुट हियर, कि हमें वैल्यू चाहिए जहाँ पे 11 है, वो किस में आएगा? वो आएगा मिड में, राइट? तो हमारा ये आउटपुट हो गया, वी शैल रिटर्न मिड विच इज लाइक द पोजिशन ऑफ दैट वैल्यू 11 इन दिस, ओके? अगर नाउ अगर हम इसे इस तरीके से देखें कि गिव मी एंड द फर्स्ट एलिमेंट विच इज ग्रेटर देन 11, राइट? अगर इसमें मैं 11 नहीं रखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल this array becomes this, right? और मुझे चाहिए the first element which is greater than 11, same code would the same code would work on this, right? Because हम condition same है, right? This is false, this is false, this is false, this is greater than equal to 11 and this is greater than equal to 11, right? अब जब हम कंडीशन देखते हैं, अगर वो फॉल्स है तो पता है कि वो तो वैल्यू तो लेस देन 11 है ही, राइट? एंड से पहले भी सारे लेस देन ही होंगे क्योंकि इट्स दिस काइंड ऑफ मोनोटोनिक फंक्शन, राइट? तो हमें इसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, तो हम उस एलिमेंट को, उसके लेफ्ट वाली सारी चीज़ों को इग्नोर करेंगे। दिस इज तो स्टार्ट इक्वल टू मिड प्लस वन, बट अगर उसकी वैल्यू ट्रू आती है, राइट, तो इट मीन्स इट कुड लाई एनी वेयर इन दिस पार्ट, राइट? इट कुड बी द फर्स्ट एलिमेंट विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 11, और इट कुड बी वन ऑफ द लेटर एलिमेंट, राइट? तो हमें दोनों चीज़ कंसिडर करनी है, इसलिए हम करेंट जो मिड है उसको इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए हम एंड इज इक्वल टू मिड रखते हैं, ओके? इससे हमारे सर्च स्पेस में वो बाउंड्री, वो एलिमेंट भी कंसिडर हो जाता है, एंड अल्टीमेटली जब ये क्लोज होगा तो मेरा आंसर किस में आएगा? सॉरी, मैंने यहाँ मिड लिख दिया है, एक्चुअली दिस शुड बी एंड, या माय बैड। तो दिस शुड बी, तुम्हारा हमारा आंसर एंड में आएगा, मिड में नहीं होगा, मिड तो हम चेक ही कर रहे हैं, राइट? तो आंसर वुड बी एंड। So this is how a complex binary search works. Okay. So this, so what I want to explain through this video is that binary search is not only applicable on sorted arrays. It could be applicable on any problem where you can reduce the problem into finding a value x, right? Such that f
you can define the problem as a function f of x, right? और आपको वो x फाइंड करना है जो कि फर्स्ट एलिमेंट होगा ट्रू या फिर लास्ट एलिमेंट होगा ट्रू. इट कुड बी इन दिस काइंड ऑफ. तो आप प्रॉब्लम को इस टाइप के एक मोनोटोनिक फंक्शन में डिफाइन कर सकते हैं जिसकी वैल्यूज x के हिसाब से फॉल्स 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 या ट्रू 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 ऐसे हो सकती है, या फिर ट्रू 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 फॉल्स 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 फॉल्स. मतलब आफ्टर वन वैल्यू वो, सॉरी, आफ्टर वन एक्स और वैल्यू, उस फंक्शन की वैल्यू हमेशा ही फॉल्स रहेगी, और बिफोर दैट वैल्यू इट विल ऑलवेज बी ट्रू, और वाइस वर्सा, राइट? अगर आप अपने प्रॉब्लम को इस फंक्शन में रिड्यूस कर सकते हैं, देन यू कैन इजिली फाइंड दैट वैल्यू एक्स जो सेटिस्फाई करेगा द फर्स्ट टी, राइट, और द लास्ट टी, राइट, लाइक दैट. तो मे बी इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा. आई विल रन थ्रू एन एग्जाम्पल, अ प्रॉब्लम, जिसमें कि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि हाउ दिस एंटायर थिंग वर्क्स. So now let's jump into the problem. Okay, so I'll just go through the problem first. Okay, what is the problem? So this is agar cow. This is a spouge problem. This is a very good problem for learning like complex binary research, right? So what does it say? Okay, let's see. So it says farmer John has built a new long barn with n stalls. The stalls are located along a straight line at positions 1 to n, right? तो मतलब एक लाइन से कंटिन्यूस स्टॉल्स हैं, राइट? इट्स अ लॉन्ग बार्न एंड इसमें स्टॉल्स हैं, दे आर एन स्टॉल्स. ओके, एंड उनकी पोजीशन दी हुई कहाँ कहाँ पे है, राइट? दे आर नॉट लाइक कंटिन्यूस. वन कुड बी एट 0, देन कुड बी 2, देन नेक्स्ट वन कुड बी 3, कुड बी नेक्स्ट वन कुड बी एट 10, राइट? So there is a like a list sequence of stalls, not continuous, right? And next, his C cows, right, don't like this barn layout and become aggressive towards each other once put into a stall. So the farmer John has C cows, right? This could be less than or equal to the number of stalls, right? Less than equal to n. Okay. Now they become aggressive if they are kept into a stall, right? Now to prevent the cows from hurting each other, FJ want to assign the cows to the stalls. So आपके पास n stalls है and C cows है. C could be less than equal to n, और आपको C cows को assign करना है इन stalls में, right? एंड आपको ऐसा असाइन, इस तरीके से असाइन करना है कि वो एक दूसरे को हर्ट ना कर सके, बिकॉज दे बिकम एग्रेसिव टू ईच अदर, right? So he wants to assign the cows to the stalls such that the minimum distance between any two of them is as large as possible. मतलब दो स्टॉल्स के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, राइट? तो हम कैसे असाइन करेंगे इसे सो दैट ये काउस अपने एक दूसरे से ज़्यादा दूर रह सकें, राइट? एंड सो व्हाट इज द लार्जेस्ट मिनिमम डिस्टेंस, राइट? नाउ अब लेट्स समझते हैं हमारे पास n स्टॉल्स हैं. लेट्स गो टू द प्रॉब्लम हियर. फॉर एग्जांपल हमारे पास n स्टॉल्स हैं, राइट? So this could be at 0, this could be at 3, this could be at 5, right, let's take this could be at 4, this could be at 9, this could be at 11, right? So now आप काऊ को यहाँ भी रख सकते हो, आप यहाँ भी रख सकते हो, या फिर काऊ को यहाँ भी रख सकते हो, राइट? क्योंकि आप जितना पास रखोगे, द पॉइंट इज कि हैव टू मैक्सिमाइज द डिस्टेंस, राइट? आप जितना पास रखोगे दे विल गेट एग्रेसिव. तो आपको दूर जितना मैक्सिमम दूरी रहना तो रख सकते हैं, राइट? बट पॉइंट ये है कि आपके पास सी काउज हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर आप मैक्सिमम दूरी रखना चाहेंगे तो इट वुड बी वेयर द फर्स्ट पोजिशन द लास्ट पोजिशन. सपोज सी इज इक्वल टू 5 काउज है आपके पास, राइट? तो आप पहले को यहाँ रखोगे, दूसरे को सबसे लास्ट में रखोगे. दिस इज द मैक्सिमम डिस्टेंस यू कैन कीप बिटवीन दिस काउज, राइट? बट आपके पास 3 काउज बच गई, राइट? आप तो दिस असाइनमेंट इज नॉट करेक्ट, राइट? तो आप ट्राई करोगे कहीं पे बीच में रखते हैं, राइट? दिस इज सी, राइट? सो अभी डिस्टेंस क्या हुआ, सी और 4 का डिस्टेंस हुआ, राइट? नाउ अब हम नेक्स्ट को देखते हैं. एक और काउ को हमने यहाँ पे भी डाल दिया, राइट? अब इसके बीच कितना डिस्टेंस हुआ, दिस इज 5 का डिस्टेंस, राइट? तो अभी तक मिनिमम डिस्टेंस मेरे क्या हुआ, 4 हुआ, ठीक है? अब हम अगर यहाँ पे रखते हैं, राइट, अब डिस्टेंस कितना हो गया, 9, 10, 11, राइट? अब डिस्टेंस कितना हो गया, 2, राइट? दिस इज 5, दिस इज 4, राइट? अभी भी बट हमारी एक काउ बच गई है, राइट? तो हमें इसी तरीके से असाइनमेंट करनी है सच दैट कि डिस्टेंस जो टू काउस के बीच का जो मैक्सिमम डिस्टेंस हो, राइट, दैट कुड बी as minimum as possible, right? Oh sorry, the minimum distance between any two cows should be as max as possible. जो भी क्लोजेस्ट है एक दूसरे को, जितनी दूर हो सके उतना दूर,
ठीक है, उसके बाद जितने काउज है उससे और दूर रहेंगे, बट जो मिनिमम डिस्टेंस है दो काउज में, जितना मैक्सिमम आप रख सकते हो उतना रखो। अब इसे हम देखते हैं सॉल्व करके, राइट। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो। नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, राइट। तो 1 सेकेंड, लेट्स सी कि हमारा ये कहाँ है। यस, तो दिस इज द प्रॉब्लम। मैंने थोड़ा सा इसमें कोड कर दिया है ऑलरेडी, जस्ट टू मेक थिंग्स इजियर, राइट। तो लेट्स सी। तो हमारा इनपुट है, अगर मैं इसे देखूं, हमारा इनपुट है स्कैनर, नॉट स्कैनर, सॉरी, हमें दिया जा रहा है द इनपुट वाज इन द फॉर्म ऑफ लाइक स्ट्रिंग, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट इज सी एंड देन टेस्ट केसेस, राइट। यहाँ पे ऐसे स्पॉन्टेनियसली ऐसे इनपुट दिए जाते हैं, तो मैंने इस तरीके से इसे ले लिया है कि n is a number of stalls and c is a number of cows, right, and this is stalls I tells you कि कहाँ कहाँ पे stalls हैं, right। So the zeroth stall is at this position. So the stall 0 is the position of the first stall. Stalls 1 is the position of the second stall. It's like that, right? And now you have to assign the cows to the stalls in such a way that let's see problem कहाँ है, yeah, so largest minimum distance, right। तो दो cows के बीच का जो minimum distance है उसको हमें large maximize करना है, right? नाउ लेट्स सी कि हम इसे बाइनरी सर्च से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो आप सोचोगे कि व्हाई डू इवन, आपको मन में आएगा ही क्यों कि हमें इसे बाइनरी सर्च से सॉल्व करना है, राइट। तो दैट इज द ट्रिक ना। तो कोई भी चीज़ अगर मैंने बोला था अगर आप उसको रिड्यूस कर सको एक फंक्शन में, राइट, जो कि एक मोनोटॉनिक फंक्शन हो कि जिसके एक लिमिट आए जिससे पहले वो फॉल्स है और उसके बाद सारी वैल्यू के लिए ट्रू, या फिर एक पॉइंट है जिससे पहले के लिए सारी ट्रू है एंड उसके बाद के लिए फॉल्स है, राइट। तो या तो आपको फर्स्ट ट्रू निकालना होगा या लास्ट ट्रू निकालना पड़ेगा, राइट। अगर हम इस प्रॉब्लम को उस तरीके से देखें, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको लिखूं कि एफ एक्स, राइट, गिव्स यू, एफ एक्स टेल्स यू, राइट, वेदर अ वैल्यू एक्स, अगर मैंने एक डिस्टेंस लिया, फॉर एग्जांपल 5 डिस्टेंस लिया, राइट, क्या मैं मिनिमम 5 डिस्टेंस के साथ सारे काउज को सारे स्टॉल्स में असाइन कर सकता हूँ, राइट। अगर मैं इस तरीके से सोचूं, फॉर एग्जांपल क्या मैं 5 डिस्टेंस के साथ मिनिमम 5, मतलब कोई भी अगर असाइन करेंगे तो दो काउज में मिनिमम डिस्टेंस 5 होना चाहिए या फिर 5 से ज़्यादा होना चाहिए, राइट। तो क्या अगर मैं ऐसा डिस्टेंस पे स्टॉल्स पे अगर काउस को असाइन करूँ, क्या मैं सारे काउस को असाइन कर सकता हूँ, राइट। अगर मैं कर सकता हूँ, राइट, तो इट कुड बी वन ऑफ द आंसर, इट कुड बी द आंसर, राइट। बट हो सकता है कि मेरे को, सॉरी, अगर हो सकता है ऐसा कि दिस इज नॉट द ओनली आंसर, राइट। हमें क्या चाहिए, हमें लार्जेस्ट मिनिमम डिस्टेंस चाहिए, राइट, लार्जेस्ट। तो हो सकता है कि एक थोड़ा सा अगर मैं 6 डिस्टेंस पे भी जाऊं तब भी मैं इन सारे अकाउंट्स का साइन कर, दिस इज व्हाट काइंड ऑफ फंक्शन, इट्स लाइक ट्रू 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 फॉल्स, राइट। क्योंकि अगर आप मिनिमम डिस्टेंस रखें, मान लें कि आप सबको एक दूसरे के बराबर रख दें, राइट, एक दूसरे के बगल में रख दें, तो आप आराम से रख सकते हैं, तो ट्रू तो हो गए शुरू में, राइट। फिर आप जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे, थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ाया तो आप असाइन कर सकते हो, बट एक पॉइंट आएगा जहाँ पे आप डिस्टेंस इतना ज़्यादा बढ़ा दोगे कि आप सारे काउज को असाइन नहीं कर पाओगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया था कि शुरू में अगर मैंने 5 डिस्टेंस रख लिया, ठीक है, तो मैं सारे काउज को असाइन नहीं कर पाऊंगा, राइट। तो फिर मुझे डिस्टेंस छोटा करना पड़ेगा, राइट। तो दिस इज करेक्ट काइंड ऑफ फंक्शन, ट्रू 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 एंड देन फॉल्स फॉल्स फॉल्स। तो हमें लास्ट ट्रू मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है, राइट। तो हमें लास्ट ट्रू निकालना है इसमें से, ओके। नाउ लेट्स सी हाउ टू कोड दिस, ओके। तो इसमें सबसे पहले जब ऐसे फंक्शंस हैं तो आपको बाउंड्री निकालनी है, आपका स्कोप क्या है, राइट। व्हाट इज द मिनिमम एंड द मैक्स, इसके बीच आपको वो वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। तो अगर हम यहाँ पे सोचे व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, राइट, मिनिमम डिस्टेंस वुड बी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू स्टॉल्स, राइट। उतना डिस्टेंस तो चाहिए ही होगा। अगर पहला स्टॉल 0 पे है, दूसरा स्टॉल 2 पे है, उसके बाद 5 पे है, उसके बाद 20 पे है, राइट। तो मिनिमम डिस्टेंस तो 0 और 2 के बीच ही हो गया ना, उतना डिस्टेंस तो चाहिए ही होगा हमें, राइट। एंड मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा, लास्ट जो लास्ट स्टॉल है और जो फर्स्ट स्टॉल के बीच का डिफरेंस, दैट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस। मैंने आपको जैसे एग्जांपल में बताया था, फर्स्ट एक काउ को फर्स्ट पे रख दे, एक काउ को लास्ट पे रख दे, दैट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस दैट यू कैन कीप, राइट। तो फर्स्ट सबसे पहले लेट्स ट्राई टू सॉर्ट दिस, राइट। जो हमें इनपुट मिला है, हमें स्टॉल्स की पोजीशंस मिली हैं, राइट, कि पहला स्टॉल कहाँ पे है, दूसरा स्टॉल कहाँ पे है। हमें पोजीशन से लेना देना नहीं, हमें पता करना है कि स्टॉल्स की पोजीशन कहाँ कहाँ पे, राइट। तो मैंने इसे सॉर्ट कर दिया, राइट।
अब मुझे चाहिए मिन डिस्टेंस, राइट। मिन इक्वल टू इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, राइट। एंड मैं लूप चलाता हूँ, एंड टी आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन क्या किसका नंबर ऑफ एन, मतलब एन हमारे स्टॉल्स हैं, एंड आई प्लस प्लस, राइट। और हमारा मिन क्या होगा, मिन इज इक्वल टू मैथ डॉट मिन ऑफ क्या, मैथ डॉट मिन ऑफ व्हाट, मिन ऑफ स्टॉल्स आई, मतलब हर दो स्टॉल्स के बीच का मुझे डिस्टेंस निकालना है, राइट। स्टॉल्स आई माइनस 1, राइट। तो इससे मुझे क्या मिला, हर दो पेयर का 0 1 0 2 1 3 2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा, जो मिनिमम डिस्टेंस होगा दैट इज द मिनिमम ऑफ माय बाइनरी सर्च, राइट। एंड मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा, एंटी मैक्स वुड बी स्टॉल, जो लास्ट स्टॉल है विच इज n माइनस 1 माइनस जो फर्स्ट स्टॉल है, राइट, स्टॉल्स 0, okay. So this is my min and max, okay. So now how do I go about and how do I start this problem, right, how to solve this problem, right. तो इसको सॉल्व करने का तरीका है कि we'll start with the basic binary search problem, which is कि हम लूप चालू करेंगे फ्रॉम मिन टू मैक्स, मिनिमम डिस्टेंस हमें मिल गया, मैक्सिमम डिस्टेंस मिल गया, अब हमें चेक करना है कि कौन से के लिए वो ट्रू आता है, लास्ट ट्रू हमें मिलता है, राइट। नाउ एक और चीज कि अगर बेस कंडीशन चेक करते हैं कि अगर नंबर ऑफ काउज इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्टॉल्स हैं, ठीक है, तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको सारों को लगाना ही पड़ेगा, राइट। मिन मतलब जो मिन डिस्टेंस है आपको सारे काउज को सारे स्टॉल्स में रख देना होगा, राइट। तो उसमें बाइनरी सर्च करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो इसीलिए इफ c इक्वल्स टू n, राइट, अगर नंबर ऑफ काउज इक्वल्स टू n, देन रिटर्न क्या, मिन, क्योंकि मिन डिस्टेंस उतना ही है, राइट। नाउ अब हम चलते हैं इससे, वाइल स्टार्ट इज क्या है, मेरा स्टार्ट है मिन इज लेस देन इक्वल टू मैक्स, राइट। नाउ पॉइंट इज कि ये डिस्टेंस, राइट। अब अगर मैं ये सोचूं कि मिन लेस देन इक्वल टू मैक्स क्यों किया है मैंने, राइट, कि स्टार्ट इज लेस, तो क्या मैक्स डिस्टेंस भी पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, राइट, बिकॉज कि मैं अगर ये तभी पॉसिबल सिर्फ अगर काउस का काउंट 2 हो, राइट। तो एक को शुरू में रख दिया, एक को लास्ट में रख दिया, राइट। तो सिमिलरली अगर हम ये करते हैं कि इफ c इक्वल्स टू 2, राइट, काउंट 2 ही है, तो क्या करेंगे, हम रिटर्न करेंगे मैक्स, राइट, ओके। नाउ अब क्या केस आएगा कि क्या मैक्सिमम डिस्टेंस पे आप रख सकते हो, आप तभी रख सकते हो दो, अगर दो से ज़्यादा है तो आप मैक्स डिस्टेंस पे रख ही नहीं सकते, तो मैक्स को इंक्लूड करने का कोई पॉइंट बनता है, नहीं बनता है, राइट। इसीलिए मैंने मिन लेस देन मैक्स कर दिया, मैंने लेस देन इक्वल टू नहीं किया है, क्योंकि मैक्स पे आप रख ही नहीं सकते, राइट। अगर वो तभी रख सकते हो जब काउज 2 है, तो आपने बिल्कुल शुरू में रखा, लास्ट में रखा, ठीक है। तो डन, तो दो बेस केसेस मैंने सेट कर दिया, अगर सी काउज स्टॉल्स के नंबर बराबर हैं तो मिनिमम डिस्टेंस उतना वही होगा, अगर दो ही हैं तो मैक्स डिस्टेंस होगा, अदरवाइज लेट्स सी हाउ द बाइनरी सर्च वर्क्स। तो नाउ int mid इज इक्वल टू, जैसा मैंने बताया था, min प्लस मैक्स माइनस min बाई 2, राइट। तो इससे हमें मिल गया मिड, गॉट इट। अब हम चेक करेंगे, फॉर एग्जांपल अब जो फंक्शन हमने बनाया जो उससे वाली ट्रू 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 एंड फॉल्स 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 है, हम फॉर एग्जांपल अभी आगे डिफाइन करेंगे, बट हम मैं इसको मान के चलता हूँ चेक, राइट। सो बूलियन, राइट, पॉसिबल, क्या पॉसिबल है, राइट, इक्वल टू चेक। नाउ अब हमें चेक में क्या क्या चाहिए, राइट, हमें चेक में चाहिए स्टॉल्स, राइट, नंबर ऑफ काउज कि कितने काउज का साइन, क्या हम कर पाएंगे क्या उन सारे काउज को, राइट। एंड सेकंड थर्ड इज कि जो मिनिमम डिस्टेंस चाहिए हमें, राइट, विच इज मिड, राइट। अब चेक करते हैं, अगर पॉसिबल है, राइट, अगर पॉसिबल है कि हाँ इस डिस्टेंस पे हम लोग असाइन कर सकते हैं, राइट,
सो इट कुड बी कि दिस इज द लास्ट ट्रू, राइट, क्योंकि हम ट्रू 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 एंड देन फॉल्स फॉल्स फॉल्स, दिस कुड बी वन ऑफ द मिडिल ट्रू, राइट, तो ये कुड, और दिस कुड बी द लास्ट ट्रू, राइट, तो हमें दोनों चेक करके चलना है, राइट, तो इस कुड हम इसे कंसिडर करके भी चलना है और हम इसके आगे भी देखना है, राइट, तो हम ये चेक करेंगे min इज इक्वल टू मिड, राइट, एल्स अगर पॉसिबल ही नहीं है, राइट, तो हमें पता है कि इसको और इसके बाद के डिस्टेंस को कंसिडर करने का कोई पॉइंट ही नहीं है, हमें लेफ्ट ही जाना पड़ेगा, हमें डिस्टेंस को कम ही करना पड़ेगा, राइट, तो मैक्स इज इक्वल टू मिड माइनस 1, ओके, तो ये चेक मेथड मैं डिफाइन करूंगा अभी, ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा बेसिक डेफिनेशन, राइट, और तो आउटपुट इसमें क्या आएगा हमारा, अगर हम इसे देखें तो आउटपुट वुड बी मिन, अगर हमें देख लेते हो मुझे क्या रिटर्न करना, मुझे प्रिंट करना, वॉइड है तो मुझे प्रिंट करना होगा, आई थिंक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, क्या होगा अब इसका आंसर, इसका आंसर होगा मिन, क्यों होगा मिन आंसर, क्योंकि मिन पे ट्रू आ रहा है, राइट, तो जो भी कभी भी मैं एंड के ट्रू आया फिर मैंने राइट वाले को देखा, ठीक है, फिर कहीं पे फॉल्स आया होगा तो फिर मैं लेफ्ट में आ गया, तो इट फॉल्स इन दैट विंडो जिसमें कुछ ट्रू है एंड कुछ फॉल्स है, राइट, अब ऐसे ऐसे करते करते मैं लास्ट ट्रू तक जाऊंगा, राइट, जिससे मैं अगेन चेक कर रहा हूँ कि इट कुड बी द आंसर या फिर मुझे उसके आगे वालों को भी देखना है, राइट, ऐसे करते करते मैं एक लास्ट एक पॉइंट पहुंचूंगा जहाँ पे मेरा आंसर ट्रू होगा, राइट, so that's why I'm taking min as the answer, okay, now अब डिफाइन करते हैं हमारा फंक्शन चेक, राइट, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो ये स्टैटिक वॉइड मेन यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ बंद हुआ, ओके, तो यहाँ पे भी हम पब्लिक स्टैटिक, सॉरी, स्टैटिक बूलियन, क्योंकि वो बूलियन चेक करेगा, चेक क्या है हमारा int stalls, ठीक है, int c which is number of cows and int dist जो कि हमारा डिस्टेंस है, राइट, अब मुझे ये चेक करना है कि क्या मैं इस डिस्टेंस पे काउस को असाइन कर सकता हूँ क्या, लेट्स सी कैसे करते हैं इसे, राइट, तो नाउ अभी मैं एक स्टार्ट करता हूँ, एक दो पॉइंटर स्टार्ट करता हूँ, prev इक्वल टू 0 कि फर्स्ट जो मेरा वर्ड इसे फर्स्ट स्टॉल जो है, फर्स्ट स्टॉल से मैं असाइनमेंट चालू करूँगा, राइट, एंड नेक्स्ट हमें एक एक करके सारे स्टॉल्स को चेक करना है कि क्या हम इन दोनों स्टॉल्स पे लगा सकते हैं क्या, मतलब क्या इन दोनों का डिस्टेंस हमारे मिड, हमें क्या चेक करना है कि इन डिस्टेंस के मिनिमम इतना डिस्टेंस होना चाहिए दो स्टॉल्स के बीच, राइट, तो हम एक एक करके स्टॉल्स को चेक करेंगे क्या इन दोनों का डिस्टेंस लेस देन है, जो हमें मैक्सिमम डिस्टेंस चाहिए, हाँ उससे लेस देन है तो इसको छोड़ दो, नेक्स्ट पे आगे बढ़ो, राइट, एंड ऐसे करके तब तक जाएंगे हम जब तक कि उन स्टॉल्स का डिफरेंस ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्स डिस्टेंस ना हो जाएगा, अगर ग्रेटर देन हो गया इसका मतलब हमें इससे पहले असाइन कर ही देना है, राइट, तो अब ऐसे देख, तो प्रेव इक्वल टू मैंने 0 से स्टार्ट किया है एंड नेक्स्ट को मैंने 1 से स्टार्ट किया है, ओके, नाउ लेट्स सी फॉर int नहीं, फॉर नॉट फॉर int, हमें कंडीशंस लगानी है, राइट, वाइल, अब हमारी कंडीशंस क्या रहेंगी कि जो नेक्स्ट है इट शुड नॉट क्रॉस आवर स्टॉल्स, शुड बी लेस देन स्टॉल्स डॉट लेंथ, राइट, एंड c इज ग्रेटर देन 0, काउ, क्योंकि काउस को हम असाइन करते जाएंगे, राइट, तो हमें काउस को सब सी को माइनस माइनस करते जाना, आगे कोड देखते हैं कैसे चलेगा, आपको ज़्यादा आइडिया लगेगा, राइट, अब मैं देखता हूँ इफ जो मेरा करंट स्टॉल है, राइट, तो स्टॉल्स नेक्स्ट, या फिर एक्चुअली लेट्स मेक इट कर, ठीक है, इससे ज़्यादा समझ में आएगा, करेंट स्टॉल, राइट, तो करेंट स्टॉल है वो लेस देन लेंथ होना चाहिए एंड या, तो अगर मेरा करेंट स्टॉल माइनस स्टॉल्स मेरा प्रीवियस, जिससे मैंने प्रीवियस स्टॉल लिया है उसके बीच का डिस्टेंस अगर लेस देन मेरा जो अभी मैं मैक्सिमम डिस्टेंस मान के चल रहा हूँ, तो फिर कोई पॉइंट नहीं है उसको कंसिडर करने का, राइट, क्योंकि हमारे पास अभी भी डिस्टेंस बचा हुआ है, हम एक नेक्स्ट स्टॉल ढूंढ सकते हैं जहाँ पे हम उसको असाइन करेंगे ताकि वो डिस्टेंस जो हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो सके, राइट, तो अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्टेंस है, राइट, इसका मतलब अब हमें एक काउ को असाइन कर देना है, राइट,
नाउ तो फिर इसका मतलब हमने सी माइनस किया, एक काउ को असाइन कर दिया, और अब मेरा प्रेव हो जाएगा कर, क्योंकि अब मेरा मतलब जो भी स्टॉल आया मेरा कर, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू तो मैंने वहां पे असाइन कर दिया। ओके, ठीक है। जो लास्ट वन है मेरा, उस पे मैंने असाइन कर दिया। ओके, तो प्रेव इज इक्वल टू मैंने कर दिया। ओके, एंड यहाँ पे हम करते जाएंगे कर प्लस प्लस, एक एक करके आगे स्टॉल्स को चेक कर जाएंगे आप। तो फॉर एग्जाम्पल जीरो था मेरा स्टार्ट प्रेव, ठीक, कर मेरा वन था, वन को चेक किया, डिस्टेंस काफ़ी छोटा है, ठीक है। फिर मैंने टू को चेक किया, काफ़ी छोटा है, राइट। थ्री को चेक किया, अब दिखा कि नहीं, ये डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, राइट। तो मतलब इससे पहले वाले या इस पे ही हम असाइन कर सकते हैं किसी को, राइट। या तो फिर क्या किया हमने, हमने यहाँ पे काउ का साइन करके सी माइनस माइनस कर दिया। अब प्रेव मेरा ये हो चुका है, और अब नेक्स्ट हम एक आगे के बढ़ेंगे, अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखेंगे, राइट। तो ये कर माइनस माइनस हो गया। अब ये पूरा लूप चलने के बाद अगर काउज बच जाती हैं, राइट, इफ सी इज ग्रेटर देन जीरो, अगर काउज बच जा रही हैं तो मतलब हम सारे काउज को असाइन नहीं कर पाए, ये डिस्टेंस काफ़ी बड़ा है, हमने काफ़ी सारे स्टॉक्स छोड़ दिए हैं, इसके कारण डिस्टेंस काफ़ी बड़ा है और हम काउज को असाइन नहीं कर पाए, इसका मतलब हम डिस्टेंस छोटा करने की जरूरत है, राइट। हम लोग रिटर्न करेंगे फॉल्स। ओके, अगर हमने असाइन कर दिया, राइट, इसका मतलब कि मे बी यही आंसर एग्जैक्टली, या ये डिस्टेंस काफ़ी छोटा है, इससे हम थोड़ा बड़ा डिस्टेंस पे भी असाइन कर सकते हैं काउ को, राइट। तो इसलिए हम रिटर्न ट्रू कर देंगे अगर सी जीरो हो चुका है तो, राइट। नाउ एक चीज़ मेरे से मिस हुई है कि काउस सिंस पहला हम एक एक करके असाइन हम कब माइनस कर रहे हैं, जब हम एक स्टॉल ढूंढ ले रहे हैं, राइट। जब हम ढूंढ ले रहे हैं कि हाँ ये डिस्टेंस सही डिस्टेंस है, यहाँ पे असाइन कर देते हैं, बट पहला काउ तो पहले जगह पे असाइन हो चुका है, राइट, पहले तो हम यहाँ पे शुरू में ही सी माइनस माइनस कर देते हैं, राइट। अब ये हो गया चेक, राइट। अब गए हम कोड पे। नाउ सिमिलरली ये फॉल्स कब देगा, जब काउस असाइन नहीं हो पाई सारी काउंस, मतलब ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बड़ा है, राइट। तो मतलब फॉल्स आया तो दिस इस पे नहीं घुसेगा, ये इसमें इस एल्स कंडीशन में घुसेगा, मतलब डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, हमें छोटा करने की ज़रूरत है, और इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे तो नहीं हो सकता है, तो हमने मिड माइनस वन कर दिया, मिड को भी कंसिडर नहीं किया है, हमने मिड मिड से छोटा कर दिया, right? अगर ये ट्रू होता है, राइट, मतलब सारी काउज असाइन हो गई हैं, तो मतलब ये डिस्टेंस सही डिस्टेंस है, इस पे हम असाइन कर सकते हैं, बट हो सकता है कि इससे बड़ा भी कोई डिस्टेंस हो जिससे पे हम फिर भी असाइन कर सकते हैं, तो हम मिड को भी लेके चलेंगे और मिड के बाकी वाली चीज़ों को भी लेके चलेंगे, इसलिए हमने मिन इज इक्वल टू मिड कर दिया। ओके, एंड आई थिंक दिस इज द कोड, राइट। एक बार चेक कर लेते हैं, एरे को हमने सॉर्ट कर दिया, ठीक है। स्टॉल्स को मिन हमने इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू लिया और आई इक्वल टू वन से स्टार्ट किया, आई लेस देन एन है, आई प्लस प्लस है, और हम स्टॉल्स आई माइनस वन करते जा रहे हैं ताकि हम दो स्टॉल्स के बीच का मिनिमम डिस्टेंस निकाल सकें, राइट। तो वो मिन में आ गया, मैक्स का आंसर हो गया, मैक्स डिस्टेंस क्या है, फर्स्ट और लास्ट स्टॉल के बीच का डिस्टेंस, राइट। तो स्टॉल्स एन माइनस वन माइनस स्टॉल्स जीरो, राइट। अब हमने देखा कि अगर सी इक्वल टू एन है, जितने काउज है उतने ही हैं स्टॉल्स, तब तो और कुछ नहीं, सब में एक एक असाइन करना ही पड़ेगा लाइन से, तो मिनिमम जो डिस्टेंस है वही हो गया आंसर। अगर दो ही काउज हैं तो एक शुरू में डालो, एक एंड में डालो, राइट, तो हमारा मैक्स डिस्टेंस हो गया। अगर नहीं है, अगर ये सब नहीं चल रहा है तो फिर मिन लेस देन मैक्स करते हैं। ओके, नाउ अब इसे सबमिट करके देखते हैं। आई एम होपिंग कि कोई मैंने छोटा सा बग नहीं इंट्रोड्यूस किया हो। स्टैटिक बूलियन चेक, स्टॉल्स लिया मैंने, सी लिया, डिस्टेंस लिया, प्रेव को जीरो कर को ये लिया, ठीक है। सी माइनस माइनस कर इज लेस देन स्टॉल्स डॉट लेंथ एंड सी इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। अगर निगेटिव हो गया हो सकता है करते करते, हाँ, तो हमें वही तभी रुक जाना है, राइट। तो स्टॉल्स कर माइनस हमने ये चेक किया कि क्या मेरे करंट और प्रीवियस के बीच का डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू जो मेरा डिस्टेंस है उसके है। तो फिर हमें एक असाइन यहाँ पे करना पड़ेगा। हमें ज़रूरी नहीं है ना कि हमें इतना डिस्टेंस पे ही बिल्कुल कोई मिल जाए, राइट। हम ग्रेटर देन इक्वल टू चेक कर रहे हैं, राइट। सी माइनस माइनस प्रेव इज इक्वल टू कर एंड कर इज, तो ये हो गया कर प्लस प्लस। हम फिर आगे बढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट दो को चेक करेंगे, ऐसे करते करते हम आगे जाएंगे, अगर ग्रेटर देन जीरो है तो ठीक है। आई होप दैट दिस शुड वर्क, लेट्स ट्राई एंड सबमिट कि इसे क्या होता है। ओके, आई डोंट नो कि मेरा कोड कहाँ पे है इसमें, बट आई थिंक अब इसे मुझे चेक करना पड़ेगा, आई चेक लेटर ऑन कि ये क्या होता है। तो पॉइंट ये है कि दिस इज़ हाउ द होल एल्गोरिदम वर्क्स। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि कहाँ मैंने क्या किया था, क्या मैंने सॉल्व किया था इसे। अगर का सकता है कोई कंपाइलेशन एरर, ओके।
राइट। मुझे लगा तो कोई बग छोटा सा आया होगा। इलीगल स्टार्ट ऑफ एक्सप्रेशन फॉर int I इक्वल टू 1 I। ओके, लेट्स सी कि मैंने क्या इसे किया था। माई प्रोफाइल, राइट, अगर काउ एंड एडिट, हम इसे एडिट करके देखते हैं। राइट, int I इज इक्वल टू 1 जहाँ पे हमने कोड दिया था। ओके, सो ये गलती की थी मैंने। आई हैड टू सेमी कॉलन्स हियर। ओके, एक बार और देख लेते हैं कहीं और कुछ गलती ना हो। स्टॉल्स, कर्व्स, लेंथ, ओके, यहाँ पे एक स्टॉल्स होगा। ओके, कट प्लस प्लस, रिटर्न दिस शुड बी फाइन। ओके, आई शुड एक्चुअली, यहाँ पे मैं रिटर्न कर रहा था, आई शुड एक्चुअली प्रिंट इट आउट जस्ट, राइट। ओके, तो यहाँ पे अगर ये होगा तो यहाँ पे मैक्स आ जाएगा। इट शुड बी एक्चुअली एलन एंड प्रिंट एलन। ओके, तो ये सब सही है, इधर भी सब सही है। और इस डॉट सॉर्ट आई दिस ऑल्सो आई मैच वन मैथ डॉट मिन। ओके, यहाँ पे मिन नहीं दिया है मैंने। ओके, yeah, stall sign minus one is done, then print this, otherwise print that, otherwise this. Yeah, looks good. Let's try to submit it again, right? And let's see कि I hope इस बार चल जाए. Let's go to my profile and let's see agar cow. Let's see कि क्या होता है इसके साथ. Time limit exceeded. Okay, so okay, so this is another complex, sorry, not complex, like typical issue with binary search is that कि कभी कभी आपके बाउंड्रीज सही नहीं होते हैं तो it goes into an infinite loop, right? So one thing to check here is कि कहीं वो round down तो नहीं हो रहा है. It may be कि left, अगर for example it's coming down to a two value subspace, right? इसमें उसे search करना है, search space. So it's trying to find the mid now. So min plus max minus min by 2, it's somehow coming out to be 0. So mid again min ही हो जा रहा है, right? It's searching and min पे true है, then again it's going back and then searching, right? So it's kind of getting stuck there. तो इस पॉइंट के लिए हमें कभी कभी राउंड अप करना पड़ता है. तो इसके लिए वी मेक दिस स्मॉल चेंज, मैक्स माइनस मिन प्लस 1. so there is no very straightforward way to find these boundaries, right? आपको कभी कभी चेक करना पड़ता है कि अगर इन्फिनाइट लूप में जा रहा है then you have to, so one way is to check with two what do you say, टू लेंथ सबस्पेस जहाँ पे बस दो वैल्यूज हैं, उसी में सर्च करना है उसे. एंड लेट्स सी कि कहीं इन्फिनाइट लूप में नहीं जा रहा है. अगर जा रहा है तो देन राउंड इट अप बाय एडिंग प्लस 1 टू दिस एंड देन इट शुड वर्क. नाउ लेट्स सी अगर ये काम करता है कि नहीं. लेट्स सी एग्रेसिव काउज, राइट, कंपाइलिंग, अभी कंपाइलिंग स्टेज में है. आई होप इट इज रनिंग. ओके, या एक्सेप्टेड. ओके, so yeah, it is accepted now. I can go here and show you here as well. Agar cow, and yeah, it's accepted. Okay, so this is the code. This is how binary search can be used to solve some complicated problems. So the goal of this video was to help you understand that binary search is not just for use on sorted arrays, right? It could be used in complicated problems जहाँ पे आपका you can reduce the problem to a monotonic function which like starts with true and then after some values becomes false, or it starts with false and after some values becomes true, right? अगर आप अपने प्रॉब्लम को इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं then binary search is the fastest approach that you can use to find that max or min value, right? Usually such problems में आपको max या min value ढूंढनी होती है, right? And using this you can search it within log n time complexity, right? I hope this is
not very easy to understand, right? Binary search can be complicated, this complex binary search, right? So try it out, right? Try yourself. अब ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करके देखो, पैगर काउ on Spoj, right? uh, अगर if you're still feeling like you're not able to understand, I'll attach a link to an article on Top Coder about binary search, which is a very good article. मैंने भी उसी से सीखा है. I'll link that in the description, and then you can probably read through it, and आपको हो सकता है ज़्यादा अच्छे से समझ में आए there. But yeah, that was the goal of this video. Thank you for watching. Soon we'll be coming up with more videos. Yeah, and let me know अगर आपको कुछ specific issues लग रहे हैं मेरे videos में, because I've just started, right? अगर आपको कोई feedback है, if you want me to improve upon some things, right? Those feedbacks would be really welcome, and I'll keep trying to add more and more videos in the future. So yeah, thank you for watching the video. Bye bye.